Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the chapter admission of a partner under Unit 4, Chapter 5 for intermediate second year students for State Board of Telangana. Let us have an introduction to the chapter admission of a partner. When an existing partnership firm requires more finance to expand its business operations and needs technical and managerial skills, etc., a new person may be admitted into partnership as a partner with the consent of all existing partners. अगर किसी existing partnership firm को और पैसों की ज़रूरत है so that they can expand their business operations, या फिर managerial skills की ज़रूरत है या फिर technical skills की ज़रूरत है, in such a situation a new partner may be admitted into an existing partnership business. A and B are partners. In such a situation, if they want more finance to expand their business operations or they are in need of managerial and technical skills, then in such a case, a new partner C may be admitted into an existing partnership firm, but such a person can be admitted into partnership firm with the consent of all existing partners. नया बंदा अगर बिजनेस में आना है तो पुराने पार्टनर्स जितने भी है वो सबका कॉन्सेंट, वो सबका अप्रूवल होना ज़रूरी है. वो लोगों की रजामंदी से ही नया बंदा बिजनेस में आ सकता. If any of the partner denies the admission of a new partner, then such a person cannot be admitted as a new partner. अगर पहले के पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी अगर मना कर दिए तब हम नए बंदे को बिजनेस में नहीं ले सकते. Next, when a person is admitted into partnership business, he or she acquires a right to share in the assets and a share in future profits of the firm. जब कोई नया बंदा बिजनेस में आ रहा, then he or she acquires two kinds of rights. One, a right to share in assets of the business partnership firm and a right to share in future profits of the partnership firm. कोई नया बंदा बिजनेस में आ रहा तो उसको दो राइट्स मिलते. एक, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के जितने भी एसेट्स है वो एसेट्स में वो पार्टनर का भी हिस्सा रहेगा. दूसरा राइट क्या है? राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. अब से जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस में, वो प्रॉफिट्स में से नए बंदे को भी हिस्सा मिलेगा. सिंस द न्यू पार्टनर acquires a share in future profits of the firm, the existing partners stand to lose or sacrifice a part of their share in future profits. क्योंकि यहाँ पे नए बंदे को फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मिल रहा, इसकी वजह से पुराने जो पार्टनर्स है वो लोगों के में जो प्रॉफिट्स का शेयर है वो कुछ कदर कम होगा, किसी कदर कम होगा. बिकॉज एज ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड from future profits, the profits will be distributed among all the partners, old partners as well as new partners, which was distributed earlier among old partners. जो profits पहले सिर्फ पुराने partners में बढ़ता था, अब नया बंदा आने की वजह से पूरे partners में बढ़ेगा, जिसकी वजह से पुराने partners का share कम हो रहा. Hence, they lose or sacrifice a part of their share in future profits. The share of profit given to new partner may be given by any of the existing partners और ऑल ऑफ दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तब यहाँ बिजनेस में जो नया पार्टनर आ रहा उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे रहे हम, वो या तो पूरे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर सकते या फिर पूरे जो पुराने पार्टनर्स है उसमें से कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 partners A, B, C and D and a new partner E is being admitted. So for a share in future profits for E, all the partners, existing partners A, B, C and D can sacrifice their share in favor of E or any of them, either A, B or C, D or A, C or B, D or only A, only B, only C और only D. या तो पूरे पार्टनर सैक्रिफाइस कर सकते, या तो कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस कर सकते, या सिर्फ एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर सकते. तो द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू ए न्यू पार्टनर में बी गिवन बाई एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. द पार्टनर ऑन एडमिशन ब्रिंग्स इन हिज और हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड additional amount called premium in order to compensate loss or sacrifice made by existing partner, and this premium is called as goodwill. तो जब कोई नया बंदा बिजनेस में आ रहा तो ये बंदा अपने साथ कैपिटल लेके आएगा. As whenever a person is admitted, whenever a person starts the business, as he is required to introduce capital in the business, similarly when a new partner is being admitted into the partnership firm, he is also required to invest capital into the business. तो नया बंदा अपने साथ क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा. फिर कैपिटल के साथ साथ ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सम एडिशनल अमाउंट विच इज कॉल्ड एज प्रीमियम. तब ये प्रीमियम का जो नाम है वो गुडविल है. तो व्हाट इज गुडविल? ये गुडविल का पैसा क्यों बन रहा नया बंदा? बिकॉज एज ही इज गेटिंग ए शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर लूजिंग
देयर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो उसका कंपनसेशन करने के लिए नया बंदा अपने साथ क्या लाएगा, गुडविल लाएगा. सो वेन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन टू द बिजनेस, ही इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर कैपिटल and he is also required to pay an additional premium called as goodwill. On admission of a partner, the old partnership agreement or partnership deed among existing partners ceases to operate and a new partnership agreement will come into force. जब यहाँ पे क्योंकि नया बंदा बिजनेस में आ रहा, तो पहले की जो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो पुराने पार्टनर्स में थी, वो पार्टनरशिप डीड ख़त्म हो जाएंगी और एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट, नई पार्टनरशिप अग्रीमेंट पूरे पार्टनर्स में बनेंगी. A new partnership agreement will come into force. As per the new partnership agreement, accounting treatment is to be given for amount brought in by new partner towards capital, towards goodwill, changes in value of assets and liabilities, distribution of accumulated reserves and surpluses among existing partners. तो नया बंदा आने के बाद जो नई पार्टनरशिप अग्रीमेंट बन रही, वो हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज आर टू बी पास्ड फॉर द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए न्यू पार्टनर, फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन बोल के बोलेंगे. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस. अगर पहले से कोई कुछ रिजर्व्स बिजनेस में रखे हुए हैं या पहले के पुराने प्रॉफिट्स जो अब तक पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हुए हैं, सो इन सब के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे आप एज पर न्यू agreement among the partners. A new profit sharing ratio also needs to be worked out to share future profits of the firm. तब क्योंकि अब तक पुराने पार्टनर्स थे और पुराने ओल्ड रेशियो में पैसा प्रॉफिट्स बट रहे थे, अब क्योंकि नया बंदा आ गया, तब नया बंदा आने की वजह से बिजनेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मालूम करना पड़ेगा. सो इन व्यू ऑफ द अबव, ये ऊपर के पॉइंट्स के हिसाब से फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. तो जब नया बंदा बिजनेस में आ रहा तो ये एडजस्टमेंट्स करेंगे आप. क्या है वो? दे आर ए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नया बंदा आने के बाद से आप क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम करेंगे, क्योंकि पहले से पुराने पार्टनर्स थे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. अब क्योंकि नया बंदा आ गया, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज ऑल्सो डन. तो पहले से जो पार्टनर्स थे बिजनेस फर्म में, कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज़ रहते, तो वो असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू फिर से रीवैल्यू करेंगे, जिसको आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन बोल के बोलेंगे. नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो नया बंदा अपने साथ क्या लाएंगा? कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा. तो जो कैपिटल का अमाउंट रहता वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, और जो गुडविल का अमाउंट रहता, बिकॉज ये गुडविल का अमाउंट क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? बिकॉज ए न्यू पार्टनर पेज द एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज कॉल्ड एज गुडविल, एज द ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर इन फेवर ऑफ दिस न्यू पार्टनर. नया बंदा आने की वजह से पुराने लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा, उसका कॉम्पनसेशन के लिए नया बंदा गुडविल पे करेगा. सो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. अगर पहले से पार्टनर्स कुछ बिजनेस में रिजर्व्स रखे हुए हैं, या फिर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, पहले के पुराने प्रॉफिट्स है या पुराने लॉसेस है जो आपस में पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, या फिर पहले से कुछ रिजर्व्स बिजनेस में रखे हुए हैं, देन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, दीज रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो नया बंदा जो कैपिटल लेके आ रहा, उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ेगा. सो दीज आर द एडजस्टमेंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, accounting treatment of goodwill, distribution of reserves and undistributed profit and losses, adjustment of capital in proportion to profit sharing ratio. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. One share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.